मीडियन को? Yes, are they? How can we represent graphically median? Ma'am, with ogive curves. Yes, ogive curves. So how many type of ogive curves we have? We need how Ma'am, many two type of types. ogive curves? Ma'am, two. Name them. Two types, ma'am. Name them, Vineet. Two types. Name them, Vineet. Less than and more than. Okay. Yes. Agam, are you back in the class now? Yes, ma'am. Okay. Agam, you have also done median with me? Yes, ma'am. You attended last class, right? Agam, अभी उसने कुछ specific series है, I'll discuss later on. Right now I'm doing graphical representation of median. ठीक है? ये this topic you can easily understand. That's why Rajat and you both pay attention here. Priyank, you can also listen to the topic. So median is graphically represented with the help of ogive curves. Ogive curves are always based on cumulative frequency. बच्चों हम लोग मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ogive curves. Ogive curves क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होते हैं. दो टाइप के ogive curve है, लेस देन एंड मोर देन. और अगर सम टाइम तुम्हें दोनों का कॉम्बिनेशन आए तो तुम उससे भी मीडियन निकाल सकते हो. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन without doing any calculation. We will solve it graphically, right? Note it down. Those who have not noted it, please note it down. Board is visible to everyone? Yes, ma'am. All right. Niharika, she is not present yet. Have you noted? Yes, ma'am. Okay. बच्चों always remember हम लोग less than and more than सिर्फ continuous series को convert कर सकते हैं. Means discrete series और individual series को हम लोग graphically represent नहीं कर सकते. Only the continuous series can be represented graphically to find your median value. So whenever question is given to you, we have always given continuous series in the question. First, let it solve with the help of less than series. So we will make less than ogive curve first. ठीक है? Less than के लिए कौन से हम लोग इंटरवल्स को, कौन सी लिमिट को लेते हैं? Less than की more than? Now I am showing you. हाँ, upper limit. तो अब मैं तुम लोगों को कन्वर्जन शो कर रही हूँ कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को वापस कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? लेस देन सीरीज. तो उसके लिए सारे अपर लिमिट्स लेते हैं. लेस देन के लिए अपर लिमिट्स. सो इट इज लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40. अब बच्चों लेस देन एंड मोर देन सीरीज में ऑलवेज क्या गिवन होता है? क्या चाहिए होता है लेस देन मोर देन सीरीज में? फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Cumulative frequency. So we will find cumulative frequency with the help of this frequency. अगम बेटा इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो. अगम you know how to find cumulative frequency? अगम आता है कि
reply. Say yes or no. मैम आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही है. Blur are ye? Is it blur for everyone? No, ma'am. So there might be network issue from your side, Agam. See, it's clear. No, ma'am. अगम अपना वीडियो जो है ना वो ऑन ऑफ करो. Switch it off, switch it on for 1 second. It's clear now. Yes, Agam. Yes, ma'am. Now it's clear. Okay. Now, Agam, tell me, how can we find cumulative frequency with the help of frequency here? You know how to find cumulative frequency? Yes, Agam. No, ma'am. ओके देखो बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं. जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है पहले वाली एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है. फिर तुमने इसमें डायगोनली प्लस करते चलना है. 5 + 2 7. अब अगेन डायगोनली प्लस करेंगे. 7 + 1 8. 8 + 2 10. सो दिस इज योर CF. समझ आया बच्चों? Those who don't know how to find CF, is it clear now? Yes, ma'am. अब अगर मुझे बताओ यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 5 7 8 एंड 10. यहाँ तक क्लियर है सबको? We have converted continuous series into less than series, and in less than and more than series we always need cumulative frequency, not your simple frequency. तो less than and more than series जब भी क्वेश्चन में होती है हमेशा CF होती है उसके साथ, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती. इसीलिए हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को CF में क्या किया, कन्वर्ट किया. राइट बच्चों? क्लियर? अब क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है. यहाँ तक समझ आ गया ना कैसे कन्वर्ट किया? अगम क्लियर है? रजत, अगम, विनीत, हार्दिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we need to represent this question graphically. So x-axis पे you will write less than series. It is 0, 10, 20, 30, 40. और y-axis पे we will represent cumulative frequency. इसका गैप ले लें अकॉर्डिंगली. 2 2 का गैप ले लेते हैं. यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके. अब बच्चों हमने करना क्या है, हमारा CF का फॉर्मूला क्या था, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला क्या था? कौन बताएगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में अगम बोलो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला था? n+1/2. नो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बेटा. Ma'am, may I? यस रजत, प्लीज. L plus n/2 minus CF by F into H. गुड. हम लोग क्या करते थे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते थे. यहाँ पे भी हमने n/2 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. We know that whatever is the last term of the CF, it is the total of frequency. हमेशा याद रखना जो CF की लास्ट टर्म होती है ना वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है. तो n is what? 10. 10/2 is fifth term. अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो CF है ना वहां पे ये फिफ्थ टर्म को लोकेट करना है. फिफ्थ कहाँ आएगा? 6 और 4 के मिड में. ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? Yes, ma'am. बोलो. नाउ इससे करस्पॉन्डिंग तुमने देखो पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन समझा देते हो फिर और इजी हो जाएगा.
10 पे कितना है ये 5, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 10 पे इट इज 5। 20 पे कितना है 7, 20 पे 7 रिप्रेजेंट कर देते हैं। 30 पे इट इज 8, 40 पे इट इज 10। तुमने इसे ज्वाइन कर दिया। लेस देन हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अपर स्लोपिंग होगा। अब वही सेम स्टेप फॉलो करना है। फिफ्थ टर्म देखेंगे कहाँ लाएगी, कहाँ लाएगी ना फिफ्थ टर्म। बच्चों तुम्हारा ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर ये आपने यहाँ से करस्पॉन्डिंग ये क्या करनी है, लाइन ज्वाइन करनी है जो कि इस कर्व को टच करेगी। इससे करस्पॉन्डिंग सीधा नीचे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां पे भी तुम्हारा परपेंडिकुलर मीट करेगा एक्स एक्सिस पे, वो तुम्हारी मीडियन वैल्यू होगी। समझ आया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? दोबारा बताओ। बोलो बच्चों। मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो हार्दिक, हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट किया, लेस देन में कन्वर्ट करने के बाद किया फाइंड सीएफ। तुमने क्या करना है, जो सीएफ की टर्म्स है ना वो एक्स एक्सिस पे, सीएफ की टर्म्स जो है वो वाई एक्सिस पे, और लेस देन जो है जो सीरीज दी हुई है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दी। अब इसकी लोकेशन कर दो, 10 पे लेस देन 10 पे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। हमने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया, 10 पे 5, देन 20 पे 7, 30 पे 8, 40 पे 10। उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, n/2 करना है, जो हम क्वेश्चन में करते हैं। यही कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है ना, n/2 किया, n/2 से तुम्हें आंसर आ गया फिफ्थ टर्म। तुमने सीएफ में चेक करना है कि 5 कहां पे है। तो हमने देखा ये मिडल में हमारा 5 आया 6 और 4 के बीच में। इससे करस्पॉन्डिंग सीधी लाइन लेके जानी है जो तुम्हारे इस ग्राफ को मीट करेगी। मान लो अगर ये ऐसे है तो इससे करस्पॉन्डिंग सीधी लाइन लेके गए, और उससे नीचे जहां पे भी ग्राफ को मीट करेगी उससे नीचे सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर जहां पे भी टच करेगा एक्स एक्सिस पे वो तुम्हारी मीडियन वैल्यू होगी। क्लियर है हार्दिक? यस मैम। अब एक चीज और बच्चों, इस केस के अंदर तुमने क्या करना है, ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। बट समटाइम क्या होता है, जैसे मेरा आंसर आ गया 10, तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉपर ग्राफ नहीं दिया जाएगा बनाने के लिए। नॉर्मल तुम्हारा जो भी आंसर शीट्स होती है उसी पे ही तुम्हें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम्हें 11th क्लास में कोई भी ग्राफ नहीं मिलता है पेपर में। तो इन दैट केस तुमने ये फॉर्मूला लगा के रफ में अपना आंसर चेक करना है, क्योंकि समटाइम्स ये 9.8 भी हो सकता है, क्योंकि हम तो एस्टिमेटेड ग्राफ बना रहे हैं। तो तुमने फॉर्मूला लगाना है रफ में और अपना आंसर चेक करना है कि वो 10 आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा होगा रिप्रेजेंटेशन यही देनी है, लेकिन फाइनल आंसर कैलकुलेट करके रफ में फिर लिखना है कि फाइनल आंसर इज 10। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ मीडियन रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकली, सारी प्रेजेंटेशन तुमने ये करनी है, बट रफ में आंसर कैलकुलेट करना है। और जब फाइनल आंसर लिखोगे मीडियन का, तो वो जो तुमने बाय फॉर्मूला कैलकुलेट किया वो आंसर लिखना है, क्योंकि सम टाइम पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज टीचर क्या करेगी, डायरेक्टली आंसर चेक करेगी बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेक करेगी कि तुम्हारे स्टेप्स ठीक है। ठीक है, इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? Yes, ma'am. अगम क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. बच्चों कोई भी डाउट होता है ना तो प्लीज एक बारी बोला करो, डू नॉट हेजिटेट, आस्क मी अगेन एंड अगेन, बट द टॉपिक शुड बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट करते हैं मोर देन सीरीज। सेम क्वेश्चन को हम लोग मोर देन
मोर देन बनाओ। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो तुम कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, इधर यू कैन ड्रॉ विद लेस देन और मोर देन। Now for more than series, let us take the same question. Frequencies 5, 2, 1, 2. बच्चों more than series के लिए always take the lower limits. More than 0, more than 10, more than 20, more than 30. Right? अब तुमने क्या करना है, फिर से क्यूमुलेटिव निकालनी है। नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग, लेस देन के केस में ऊपर से सीएफ निकलती है, मोर देन के केस में नीचे से सीएफ निकलती है। सेम प्रोसेस करेंगे। 2 आया एज इट इज, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। देखो सीएफ निकालनी समझ आई सबको? Yes, ma'am. क्लियर है रजत, हार्दिक, विनीत? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों ग्राफ पे। नीचे क्या आएगा, मोर देन सीरीज, ठीक है। अब ऊपर y एक्सिस पे CF, CF का अगेन गैप 2 2 ले रही हूं मैं। देखो 0 पे कितना है, इट इज 10, तो ये रही 0, 0 पे पॉइंट आ गया 10, 10 पे इट इज 5, सो 10 पे वी आर टेकिंग 5, 20 पे इट्स 3, 30 पे 2। अगेन इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व ड्रॉ करो। कर्व ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज n/2, CF का टोटल 10, इट इज 5। देखो लेस देन में अपवर्ड स्लोपिंग था, मोर देन में डाउनवर्ड स्लोपिंग है। n/2 कितना है, 5। CF में चेक करो 5 का आएगा यहाँ पे, इससे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर, कर्व के ऊपर, और नीचे परपेंडिकुलर। अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 10, तो मीडियन वैल्यू 10। रफ में फॉर्मूला लगा के अपना आंसर चेक करोगे। देखो क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो लेस देन एंड मोर देन ये केसेस है। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ, Excuse, ma'am. यस बोलो। Ma'am, these curves will be free-handed or with scale? No, free hand curves beta. No use of scale, only when you will draw the perpendicular or you will join the lines. Means this meeting of the points, joining of the points will be free hand. Rest portion you will use scale. And these scales means जो हमने terms लिए हैं, these are estimated. There is no appropriate difference between all three terms, right? मैम कर्व्स का एक एंड ओपन ही रहेगा, मतलब वो हाँ, एक एक एंड ओपन रहे। बेटा जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना हार्दिक, हम वहीं तक लेके जाएंगे। अगर ये नंबर्स और होते आगे तो हम इसे और आगे तक ले जाते हैं, बट हमारे पास नंबर्स 30 तक है तो हम यहीं तक लीव कर देंगे इसे। ओके मैम। चलो अभी मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, डू इट, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं इनका। Do question number 22 and 23. One is more than, other is less than. ठीक है, रफली कैलकुलेट योर आंसर, और मैं सबकी प्रेजेंटेशन देखूंगी। You will switch on your video, focus on your notebooks and show me your presentation then.
Take the screenshot. Done? Taken? Yes, ma'am. Yes. 1 minute, Do the ma'am. question. Yes, Mayank. Yes, Mayank. Mayank, now let's start the topic. Mayank, you have maths in 10th class? Excuse me, ma'am. Yes, beta. मैम एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना. Mayank. Mayank is asking me to share the Ma'am, screen. Sorry? मैम अगम. Agam. Okay, okay. Yes, Agam. Take the screenshot. Done, beta? मैम कौन से Vinit, क्वेश्चन करने हैं? clearly? यस मैम, क्वेश्चन कौन से करने हैं मैम? 22nd and 23rd. ओके मैम. Mayank, board is visible to you? Mayank? Mayank, are you in the class? Yes, ma'am. Okay, Mayank, please do reply, beta. Otherwise, we can't communicate with each other. Mayank, economics में we have two books. First is statistics. Another is microeconomics. Okay, ma'am. Mayank, कभी स्कूल की कोई क्लासेस लगी है? No, ma'am. ठीक है, तो टू बुक्स है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, जो हमने कवर करनी है +1 के कोर्स में, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. जो स्कूल वाले कहेंगे वो बुक रेफर कर लेना, बिकॉज विद मी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ बुक. आई विल प्रोवाइड यू नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बोथ द बुक्स, राइट? एंड क्वेश्चंस भी मैं खुद ही करवा दूंगी, सो नॉट टू वरी. जो स्कूल रेकमेंड करते हैं वो बुक ले लेना. मैम हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स करें. मैम 10th का परसेंटेज क्या था? Yes, ma'am. 10th का परसेंटेज मैम बताया नहीं मैम स्कूल वालों ने. आया नहीं. चलो No, मैथ्स ma'am. मैथ्स के No, ma'am. Not in 11th. नहीं मैथ्स किया 10th में. You have Yes, done ma'am. maths now. Yes, ma'am. So how was your maths in 10th class? अच्छा लगता था मैथ्स की नहीं लगता था? मैम लगता था मैम, पर उतना नहीं. अच्छा उतना नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना अभी हमें मैथ्स भी करना पड़ेगा. थोड़ा सा मैथ्स ma'am. है, थोड़ी थ्योरी है. तो बच्चे स्टैटिस्टिक्स में भी ना थ्योरी भी है, as well as we have numerical problems. So all the numerical problems, it is involved with the formulas. ठीक है? So Yes, in ma'am. theory portion beta we will do later on, because right now there is a formation of batch. So once the batch will get formed, then we will start with theory. Right now we are doing all the numerical problem chapter. We have already finished 2 chapters in the class. बेटा उसके लिए ना आपको जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना वो एक बार ही देखने पड़ेंगे, बट मैं रिवीजन भी करवा दूंगी. बेटर रहेगा एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक कर लेना. Ma'am, from where to get the recorded lectures? Or you can get it from A1 app. बच्चे you have to inform in the institute and they will provide you with the password and you can check over there A1 app, right? In A1 app you will get all the recorded lectures of economics till now, whatever we have done. Agam and you can also check the recorded lectures. बच्चों Okay, okay, ma'am. now the chapter is measures of central tendency. Right now बच्चे we are doing a chapter of statistics, measure of central tendency, median and mode. Mayank, you must be familiar with the term median and mode.
10th क्लास में किया होगा ना मीडियन एंड मोड, इट वाज इन मैथ्स. Yes, ma'am. Okay, now tell me what is median? Ma'am, the middle value. Okay, you all know that median is the middle value only, right? But in economics we need a proper definition of median. So right here I'm writing the definition, then I'll make it clear to you. Okay, ma'am. Median is the positional average or positional value that divides the data in two equal parts where one part comprises the value less than that variable and other part comprises the value more than that variable. Mayank, note it down there. बच्चों हो रहा है क्वेश्चन लेस देन एंड मोर देन का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. Okay. Once you I'm all done. done it, okay. So you got the answers correct? Who has done it? Who has done both the questions? I'm Rajat? on second. Okay, you are on second. Who told me ma'am done? Sorry, please reply. Who has done it? Excuse me, ma'am. Yes, Agam. मैम ये थर्ड लाइन में पार्ट के बाद क्या लिखा है? One part comprises. COMPRISES. ओके. अगम हम लोग तो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तुमने तो डेफिनेशन लिखी होगी पहले भी. यस मैम, वो पेज पे लिखी थी, वो मिल नहीं रहा था, मैंने सोचा एक बार फिर नोट डाउन कर लेता हूँ. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. क्लियर था ना अगम मीडियन निकालना? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कोई डाउट तो नहीं था? मैम नो मैम, कोई डाउट नहीं. ओके. अगम सॉरी मयंक, हैव यू नोटेड इट? Yes, ma'am. ओके. नाउ सी मयंक, हम लोग ना एक क्वेश्चन लेते हैं. With the help of the question, you can easily understand what is the definition of the median. बेटा देखो मीडियन क्या है, ये मान लो एक पूरा डाटा है. मीडियन क्या करता है, इस पूरे डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये जो पार्ट होता है ये लेस होता है इस वैल्यू से, ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये मोर होता है इस वैल्यू से. सो मीडियन इज हैविंग middle position because it is dividing the data in two equal parts. That's why we can say this कि median is having middle position in the data. समझ आया बच्चे? तो median क्या करता Yes, है, ma'am. दो पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है. एक पार्ट उससे छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है 8, 5, 10, 12, 20, राइट. लेकिन मीडियन के लिए क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. यूजुअली हम लोग असेंडिंग में ही अरेंज करते हैं. तो 5, 8, 10, 12, 20 ये हो गया बेटा. अब देखो मिडिल वैल्यू क्या है, 10. 10 इज द मिडिल वैल्यू. इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया डाटा को. ये वाला पार्ट देखो, इसकी वैल्यूज 10 से छोटी है. ये लिखा मैंने डेफिनेशन में. वन पार्ट कंप्राइजेस द वैल्यू लेस देन दैट वेरिएबल. इस वेरिएबल से वैल्यूज कम है और दूसरे वाले की वैल्यूज क्या है, उससे ज्यादा है, राइट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन.
समझ आया? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So median is the value. It is a positional value जो कि data को divide करता है in two equal parts where one part is having values less than this and the other part is having values more than this variable. Clear beta? Because now in the paper you may ask definition of median. Define median. Then what will you write? It is the middle position? No. You have to write the entire definition now. Okay, Done, ma'am. Bache? Yes, ma'am. Okay. Now, next is what do you mean by series? Because if you have the knowledge of series, only then you can solve the questions. बच्चों हो गया less than and more than? Yes, ma'am. Done. सबका हो गया? No, Yes, ma'am. all of you? No, ma'am. No. No, Okay, ma'am. I'm showing you. Okay, I'm showing you one page, बच्चों. You have to solve the questions of this page. बच्चों, in this assignment, it is not given that the series is discrete, it is your continuous or individual series. You have to identify it yourself, then you can solve the question. Take the screenshot. Vineet, pick ले लेना please. Yes, मैं एक बार वो दूसरी वाली भी कर दूं, less than and more than वाली. कौन सी वाली बच्चे? मैम less than and more than वाली भी एक बार शेयर कर दूं. अच्छा, इसकी ले ली? पिक ले ली इसकी? Yes, ma'am. Have you all taken the screenshot? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, start doing your questions. Agam and Rajat, might be तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है ओपन एंड सीरीज और उसमें जब वो क्वेश्चंस आएंगे डू आस्क मी. विनीत, oh sorry, these are Okay, ma'am. different questions. Vineet, these two, question number 22 and 23. Thank you, ma'am. Hardik, Yes, ma'am. Hardik, have you done both the questions? No, ma'am. Doing. Agam, have you done it? Yes, ma'am. Show me your register, Agam. Okay, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Agam, show me. Ma'am, my camera is on. Agam, it's not visible at all. And don't do that if you have put your finger in front of the camera, huh? No, ma'am. It's not visible at all. How is that possible if you're showing it? Yes, Rajat. Show me your notebook, beta. Ma'am, yes, one. Yes, Rajat. It is less than. Yes. Oh, yeah, it is more than, beta. First one is more than. Ma'am, Because yes, it is first down. one is more than and the second one is less than.
Okay. So you have solved the answer in rough. You have calculated the median value. Ma'am, it was already coming, ma'am, exact. See, for you it is coming the exact value here, but these are the estimated graphs. So please, to verify your answers, just calculate it once. It will take hardly 10 seconds to calculate the values. Okay, ma'am. Okay, it's for your safety. Who else? Vineet, can you show me your register? Yes, ma'am. Yes. Please show it. मैम लैपटॉप के थ्रू दिखा रहा हूँ मैम वैसे हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. मैम थोड़ा सा एक गलत हो गया था मैम ये थोड़ा ऊपर को हो गया था इसका थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. मैं तो सिर्फ एक वे देखना चाहती हूँ कि तुम लोग समझ आ गया कि नहीं आया. ठीक मैम है. समझ आ गया मैम अभी लेस देन वाला लिख रहा हूँ मैम थोड़ा सा रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, आराम से सॉल्व करो. मतलब कुछ भी गलत अटेम्प्ट मत करना. इफ ठीक है। समथिंग इज नॉट क्लियर, प्लीज डू लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. गलत मत करना कुछ भी. ओके ठीक है. ओके, गुड. Agam, you didn't show it. It's clear by everyone now. But it's your loss. If you are not showing it to me, it's your loss. I'm not able to check where are you standing now. Huh? Okay, it's up to you. चलो अब क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने. अगम, हार्दिक, विनीत एंड रजत. जो क्वेश्चंस मैंने मीडियम Yes, के ma'am. दिए हैं, स्टार्ट डूइंग दोस क्वेश्चंस बच्चों. Okay, ma'am. Okay, Mayank. Sorry for the inconvenience, beta. You have to face it because now you are in between the class. So we are already doing one chapter here. Next comes Mayank. Yes, ma'am. Next is series. Mayank, what is series? A series may be defined as a thing or attributes of thing arranged in some logical manner, or you can say order. बच्चे सीरीज की डेफिनेशन नोट करो. Ma'am, done. ओके बेटा. बच्चे सीरीज क्या होता है? देखो, सीरीज क्या है? जब हम किसी भी डेटा को, किसी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को एक लॉजिकल ऑर्डर या सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं. मतलब कोई भी थिंग, जैसे मान लो हम वेट्स को अरेंज कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को अरेंज कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, मींस टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, राइट. एट्रीब्यूट्स मींस उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सीरीज. अब सीरीज इसलिए बताया बच्चे क्योंकि जितनी भी स्टैटिस्टिक्स करनी है ना, उसमें हमें सीरीज आती है. सीरीज की डेफिनेशन आती है 4th चैप्टर में जाके, जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है चैप्टर का नाम. बट मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इन थ्योरी पार्ट्स की इंट्रोडक्शन जरूर देती हूँ, जस्ट बिकॉज ताकि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी हो. तो हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है मैम, जो मेजरली हम हर स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे ही करेंगे. सो द 3 सीरीज आर इंडिविजुअल सीरीज, second we have is discrete series, and the third is continuous series. ठीक है बेटा, नोटेड डाउन. Ma'am, done.
डन बेटा? Yes, ma'am. बच्चे इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है मैम? Ma'am, single. हाँ, सिंगल। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो डाटा की इंफॉर्मेशन होती है, मींस द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इट इज वेरी सिंगल टर्म्स, बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन है, इस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नो फ्रीक्वेंसी। सिंगल डाटा is present, it has no frequency. Right beta? Every unit has its own measurement. नोट करो बेटा इसे। Ma'am, noted. डन, वेरी गुड। ओके, देखो बेटा, इंडिविजुअल सीरीज सिंगल डाटा है जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। हर यूनिट की अपनी खुद की मेजरमेंट है, मतलब वो इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल नंबर की अपनी खुद की वैल्यू है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती, दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज अनग्रुप सीरीज। अगर तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि among all which series is ungrouped, individual, discrete, continuous, so individual series is always ungrouped series. Why it is ungrouped here? Ma'am, because it has no frequency. Good. Now let's start questions based on individual series. Later on I'll tell you discrete and continuous series. Now beta, in case of individual series, we can calculate median. Median is always denoted by capital M, right? We have two cases to find median. Case 1, when n is odd. Case 2, when n is even. ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर n ऑड होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1/2x टर्म, and in case this, when n is even, median is n/2x term plus n/2 plus 1x term by whole 2. बेटा फॉर्मूलाज नोट करो। Ma'am, noted. देखो अब एक चीज याद रखना, फॉर्मूला में यहाँ ये लाइन पूरे के नीचे है और यहाँ से वादे के नीचे है, तो दिस and this, they are not the same terms. Always remember there is a major difference, right? Now बच्चे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। अब दोनों केसेस, जब भी तुम केस अप्लाई करोगे, मीडियन के केस में कोई भी सीरीज होगी, always arrange the data in ascending order first. So this is the first step. Arranged in ascending order. बच्चे क्वेश्चन है, find the median in the following data. अब देखो मैम, ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंगल क्वेश्चन है जहां पे फिर
फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब तुम्हें इकोनॉमिक्स में मेंशन नहीं करके आएगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें ये वाला मेथड लगाओ। You have to identify the given series is individual, discrete, or continuous. So this is the first identification, as there is no frequency. So this series is individual series, right? Now, first Yes, you ma'am. have to terms in ascending order. तो सबसे पहले हम ascending order में arrange करते हैं। अगर ascending order में arrange नहीं करोगे, आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखो अगर वैसे आंसर दोगे तो इट इज 100, बट यहाँ पे दोगे इट इज 60। अब डायरेक्टली 60 नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखना है। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ Number of terms. So it is 1 2 3 4 5. We will apply medians formula। 5 is an odd number, तो ये वाला केस अप्लाई होगा। n plus 1 by 2th term, which is 5 plus 1 by 2th term. You have to mention this th term. 6 by 2 is third term. अब यूजुअली क्या करते हैं बच्चे, ये नहीं लिखेंगे थर्ड टर्म और कहेंगे आंसर आ गया 3। इट इज रॉन्ग। यू हैव टू मेंशन इट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब अब ऊपर अपना डेटा में चेक करो व्हिच इज योर थर्ड टर्म। 1 2 3, 60. थर्ड टर्म 3। So your median value is 60. Is it clear beta? Yes, ma'am. Okay, note कर लिया। Yes, ma'am. Now let's do the another case। बच्चे मैं इसी में एक और टर्म ऐड कर रही हूँ टू मेक इट इवन। 200। Now the n is 6। n कितना आ गया? 6। 6 is an even number। For even number we will apply this formula। So it is n by 2th term plus n by 2 plus 1th term by whole 2। 6 by 2, 6 by 2 plus 1th term by whole 2। 6 by 2 is third term। Again it's 3 plus 1, fourth term by 2। अब यहाँ पे भी मिस्टेक क्या होती है? थर्ड टर्म को सिर्फ 3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को सिर्फ 4 लिखते हैं। 4 plus 3 7 कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। That is wrong। You have to evaluate the values here। Third term is 60 and fourth term is 100। So 80 is the median value। See beta, it's clear? Yes, ma'am. Okay, now I'm showing you one page। You have to solve the questions, right beta? Okay, ma'am. बच्चों हो गए आप लोगों की क्वेश्चंस? किसी को कोई डाउट है? Mayank, page is visible to you? Mayank, Yes, ma'am. the screen that I have shared, is it visible to you beta? Yes, ma'am. It's visible. Okay, then take the screenshot and do question number 1 2 3। And remember this, you have to arrange the data in ascending order first, otherwise your answer will be wrong। Okay, ma'am. बच्चों हो गया आप लोगों का क्वेश्चंस? अगम, हार्दिक, रजत, विनीत, एनी प्रॉब्लम बेटा? No, ma'am. अगम, No, ma'am. No, ma'am. अगम and रजत,
I have discussed the major series with you: individual, discrete, and continuous. Now I have to discuss some specific series. Ma'am, what is the answer of 22nd question? 22nd question. It is 32.57. Yes, Rajat, Ma'am, is it correct? 32.57. Ma'am, I am getting different answer. Okay, no problem. Tell me the question. Yes, Rajat, tell me the question. Ma'am, it is, ma'am, first marks Marks 11 to 15. 11. Have you converted into exclusive series first? Ma'am, yes. Ma'am, I have converted it to continuous. No, it is continuous given in the question. Have you converted it into exclusive? Ma'am, exclusive means how? Huh. That's what I want to tell you, both Agam and Rajat. Look here. बच्चों, we have done the three major series. अगर तुम्हें सिंपल टर्म्स में कहूँ ना तो ऐसे याद रखना कि हम लोग सीरीज के जो रियल ब्रदर सिस्टर्स है ना वो हम लोग कर चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग द कजन्स ऑफ देम. मींस उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन सीरीज है, स्पेशल सीरीज. अब स्पेशल सीरीज में भी बहुत सारे टाइप हैं. फर्स्ट इज योर इंक्लूसिव सीरीज and exclusive. Okay, inclusive and exclusive series. बच्चों, in inclusive series, in this series, value of upper limit is included in the concerned interval, but in case of exclusive series, in this series, value of upper limit is excluded from the concerned interval and it is included in the next interval. Agam and Rajat, note down these definitions. Done, बच्चों? Yes, ma'am. 1 minute. No problem, Agam. Note it down.
डन अगम? यस मैम। ओके बच्चों देखो इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज में आया रिटर्न वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। देखो 9 है, अपर लिमिट है 9, 19 एंड 29। अगर मुझे 9 का टेलीमार्क लगाना है तो अगर मैं कहाँ लगाऊंगी? यू नो ना हाउ टू मार्क द टेलीमार्क्स? ये है ना जूनियर क्लासेस में 9 का टेलीमार्क लगाना है तो कहाँ लगेगा वो? कौन से इंटरवल में लगेगा बोलो ना? मैम फर्स्ट में। ठीक है। अब एक्सक्लूसिव में क्या है? रजत मुझे 10 का टेलीमार्क लगाना है, कहाँ लगेगा? 10 to 20. 10 to 20। देखो बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? इन इंक्लूसिव सीरीज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द कंसर्न्ड इंटरवल। मतलब उसी इंटरवल में हमने उसका टेलीमार्क लगा दिया। लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हुआ? इसकी अपर लिमिट थी 10, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो अपर लिमिट है इसी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो 10 का टेलीमार्क यहाँ लगना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? नेक्स्ट इंटरवल में लगाया। सो दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पे अपर लिमिट की वैल्यू उस इंटरवल में इंक्लूड ना होके नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होती है। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव? Yes. यस अगम क्लियर है बेटा? यस मैम। तो Ma'am, हमेशा हाँ बोलो बेटा। ma'am, I have solved. ओके मैम प्लीज वेट फॉर 1 मिनट बेटा। ओके इधर देखो अब, तो ये इंक्लूसिव सीरीज है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज पे। सो यू कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। हाउ कैन यू कन्वर्ट इट? यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 Adding and माइनस, subtracting. हाँ अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे, बिकॉज वी हैव टू गेट दीज डायगोनल लिमिट्स इक्वल सेम। तो जब तुम यहाँ पे ये एडिशंस करोगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, यू विल गेट 0.5 to 9.5, then 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। देखो नाउ दे आर एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है रजत। अब वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर ठीक आ जाएगा। Ma'am, I have done like that only. Okay, you have converted it into exclusive one? मैम Ma'am, मेरा yes. 1.74 आ रहा है किसमें बेटा? मैम, यही 20 सेकंड का ही। 30 कितना बताया था मैंने रजत? मैम आपने बताया था 32.57। हाँ 32.57 मीडियन ना? Ma'am, yes. Ma'am, I am Yes. getting 31.71. लेट मी चेक इट अगेन। बच्चों ये समझ आ गया, नोट कर लिया आगा में रजत? Yes, यस ma'am. क्योंकि सीरीज की डेफिनेशन भी आ सकती है। अच्छा टेल मी योर क्वेश्चन बता रहे थे ना रजत तुम 11 to 19? Ma'am, it बोलो। was 11 to 15. 15? Yes, ma'am. नेक्स्ट 16 to 16 to 20. then 21 to 25. then 26 to 30. और भी है 31 to 35. 36 to 36 40 to 40. और भी है Yes, ma'am. 41 to 45 and 46 to 50. दैट्स इट। Yes, ma'am. तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं ना। Ma'am, अगम ये समझ आ गया ना कन्वर्ट कैसे किया है? यस मैम।
कोई भी डाउट पूछ लेना, ऐसा नहीं कि थोड़ी कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो पूछना नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन भी नहीं क्लियर होती बेटा पूछ लेना। ओके मैम। फ्रीक्वेंसी बोलो बेटा, डोंट हेजिटेट कि मैं कैलकुलेशन पूछूंगा क्लास में, डोंट थिंक दैट बेटा, व्हाटएवर यू हैव डाउट प्लीज आस्क। ओके मैम। हां फ्रीक्वेंसी बोलो। 7, हम्म 10, 13, 26, 35, 22, 11, 5. वन 129 आ रही है लास्ट टर्म। Yes, ma'am. Okay, now let's do the question. 129 by 2, 64.5. 64.5. So it will lie here. Yes, ma'am. L is 30.5. 30.5. 64.5 minus 56 over 35 into the difference is 5. 5. ये कितना आ गया 0.5 8 8.5 ठीक है। हाँ, 14 1 पॉइंट फिर से तो यही आ रहा है, यही आ रहा है आंसर बच्चों। हाँ इसको Ma'am, ज्यादा yes, 31.71. हाँ तो 31.71 आंसर आ रहा था 32.57। ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें ना इसके और डेसिमल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो जब तुम इसके ज्यादा डेसिमल्स कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारा आंसर 32.7 ही आएगा ऑन अराउंड। Ma'am, Another but then also it 31.7. will not become 32. Ma'am, it will become 1.214. Ma'am, how it will become 32? नहीं बट द आंसर इज 35.5 1.2 ना 1.21 31.7 आ रहा है ना। Ma'am, This yes. is correct better because the procedure is right. It is Ma'am, correct. so that 32.1 is wrong. हाँ 32.5 गलत दिया होगा बुक में आंसर क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। Yes. हो गए सारे क्वेश्चंस हो गए। सॉरी बच्चों हो गए क्वेश्चंस जो मैंने शेयर किए थे। मैम 23rd और 24th का आंसर बता दो। हाँ एक मिनट ट्वेंटी थर्ड का 23 एंड 24 का 156। ओके मैम। Mayank, you have done individual series now. Now next comes your discrete series. Mayank, next series is discrete series. Yes, ma'am. बच्चे discrete बता रही हूँ ताकि इसका डिफरेंस समझ आ जाए। ये डिस्क्रीट सीरीज है और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। सबसे पहले दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है। इट हैज फ्रीक्वेंसी, इट आल्सो हैज फ्रीक्वेंसी। दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है इसीलिए इन दोनों सीरीज को हम लोग ग्रुप सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप सीरीज। सेकंड बेटा
are present, but in this series complete numbers are not present. Now, in this case, third point is what? Value of each variable is exactly measurable. In this series, value of each variable is not exactly measurable. नोट करो बच्चों इसे. Ma'am, noted. ओके बच्चे देखो इन सीरीज में होता क्या है, जैसे तुमने पॉइंट्स नोट कर लिए ना, मैं थोड़ा ऊपर ही लिख रही हूँ बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट. Now this is the identification, ma'am. देखो मैम दोनों में फ्रीक्वेंसी है, पहला फीचर था दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है. डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल नंबर्स है ना, इंडिविजुअल के साथ जब फ्रीक्वेंसी दी होती है दैट सीरीज इज Yes, ma'am. डिस्क्रीट सीरीज. अब मैंने डिस्क्रीट सीरीज का सेकंड पॉइंट बताया था बेटा, कंप्लीट नंबर्स आर प्रेजेंट. तुमने कभी भी फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा कंप्लीट नंबर पे होती है. तुमने x की वैल्यू देखनी है. देखो 10 क्या है, एक कंप्लीट नंबर है. 20 है, एक कंप्लीट नंबर है. लेकिन यहाँ पे आओ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कंप्लीट नंबर्स आर नॉट प्रेजेंट. यहाँ पे एक रेंज दी हुई है बेटा, एक लिमिट दी हुई है कि 0 से लेके 10 तक में जो भी नंबर होंगे वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे. क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट क्लियर है? बट यहाँ पे Yes, ma'am. नंबर्स है. थर्ड पॉइंट क्या था? वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इज एग्जैक्टली मेजरेबल. ये क्या है? ये वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? देखो 10 के आगे फ्रीक्वेंसी कितना है? 5. इसका मतलब जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन थी उसमें 10 एक ऐसा नंबर था जो कि 5 बार ही आ रहा था. हमने उसके टेलीमार्क लगाए 5, राइट? Yes, ma'am. बट इसमें देखो, इसमें भी 0 to 10 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है. 5. लेकिन हमें ये नहीं पता, जैसे 2 है, 3 है, 4 है एंड 4 है अगेन, फिर 6 है. इन सबके टेलीमार्क कहाँ लगेंगे मैम? कौन से इंटरवल में लगेंगे? 0 to 10. हाँ, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो पांचों के टेलीमार्क लग गए यहाँ पे. अब तुम ये बता सकते हो कि ये 5 फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की थी? यहाँ पे तो बता सकते हैं ना कि 5 फ्रीक्वेंसी 10 की है, मतलब 10 एक नंबर है जो 5 बार ही आया. लेकिन यहाँ पे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना. No, ma'am. No, ma'am. 5 नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, 5 नंबर सेम भी हो सकते हैं. तो इसीलिए ये सीरीज में वेरिएबल्स की वैल्यू मेजरेबल नहीं होती, हम उसे मेजर नहीं कर सकते. समझ आ गया बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे, बिकॉज़ दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एक्सक्यूज क्योंकि मैम. तुम लोग मैथ्स करके आए हो 10th क्लास में, लेकिन तुम्हें नहीं पता होता कि व्हाट इज डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज. थी नॉलेज पहले? एक्सक्यूज मैम. बेटा बोलो रजत. Ma'am, the answer of 23rd question is 26. आई डिक्टेटेड टू हार्दिक. हार्दिक क्या आंसर्स बताए थे मैंने? मैम 23rd का 23 है. 23. गॉट द सेम आंसर हार्दिक. यस मैम. और नेक्स्ट क्या बताया था? ट्वेंटी फोर्थ का क्या आंसर बताया था हार्दिक? 156. 156. हाँ 156 एंड 23 चेक करो बेटा एक बारी, तुम्हारा आंसर Ma'am, yes, करा. once I will check it. मैम देखो डिस्क्रीट सीरीज में
मीडियन कैसे निकालते हैं? We have only one single formula, n plus 1 by 2th term, जो कि तुम इवन नंबर ऑड नंबर में यूज करते हो ना इंडिविजुअल में, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है। मैंने बोला था डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम और कौन सी सीरीज बोलते हैं? Discrete or group Discrete series. और कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं? और Group group. series. Why they are called as group series? Because they have frequency. Because they have frequency. Right, beta? Now, whatever statistical term you will solve, always remember बच्चे, जब भी discrete series और continuous series का क्वेश्चन होगा, कुछ भी निकाल रहे हो तुम, मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, मोड निकालोगे, आगे तुम लोग रेंज निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, n का मतलब क्या होगा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला में मेंशन नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, n is what? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब भी And for क्वेश्चन discrete one. हाँ Ma'am, for discrete. discrete और for continuous both। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी किस किस में होती है? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में ना? Yes, ma'am. दोनों, जहां पे भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होती है, n का मतलब हमेशा ये होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन सिग्मा f। सिग्मा किया है ना? सिग्मा मीन समेशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन ना? तो इट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो मत करना Okay, नंबर ma'am. 2 3 4 काउंट मत करना। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों में n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ भी सॉल्व करना, कुछ भी। अब ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट। n मींस आई विल चेक यू कि बच्चों को याद है कि नहीं, n इज व्हाट हियर, राइट? नोट इट डाउन। मैम 25th का क्या आंसर है? लेट मी चेक आर दे where is notepad? Ma'am, noted. Okay, okay, ma'am. 1 minute. Which question are they? 25th? Yes, ma'am, 25th. It is 241.21. Yes, ma'am. मैम 241.2 तक ही आ रहा है। हाँ, no problem. It's correct. Look here, ma'am. मैम ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल के साथ जब फ्रीक्वेंसी की होगी तो कौन सी सीरीज है ये? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है बेटा? मयंक, मयंक, एम आई ऑडिबल बेटा? मयंक, बच्चा तुम्हें मैं और क्वेश्चंस दे रही हूँ। Take the screenshot of the page. अगम, हार्दिक, रजत, विनीत, ले लिया मैंने। ले लिया?
यस मैम। अब अगम जितने क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो पाएंगे, तो नॉट टू वरी बेटा, हम लोग क्लास में दोबारा करेंगे। देखो तुम लोगों ने क्वेश्चंस कौन से करने हैं, सुनो। यू कैन ट्राई 30, 31, 32 एंड 33। ओके हाँ, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं। डू इट एट योर होम। ओके मैम। I think there is network issue from Mayank's side. ठीक है बच्चों, now you can leave. मैम Bye. एक बार आंसर्स डिक्टेट कर दो। हाँ हाँ बोलो आंसर्स। Okay, wait a minute. Question number 26. Answer is 32.5. 27. It is 27.5. Next is 28. It is 15. 29, 15 and 10. Question number 30, 45.43. 31, 24.46. And 32, it is 40. And the last you will calculate it yourself. I think it is 25. Ma'am, what you told of 31? Sorry. Yes, Rajat. I told you Ma'am, to 30. 30 to 33. Ma'am, no, I am saying what answer you told of 31. Okay, 31. 31 का क्या बोला था मैंने यहाँ पे? It's 24.46. Okay, ma'am. थैंक यू मैम। Okay, बच्चों, bye bye. Take care. We'll meet in the next